Hello friends, this is Dr. Pooja Nayak and I welcome to all of you in our YouTube channel Homeo Concept. So friends, during Corona pandemic condition, I hope you all are happy, healthy and safe at home. Friends, today is my first video in Homeo Concept and this video is aimed to give you a proper information about PCOD and its homeopathic management. As we all know that during Corona crisis, each and every patient is not able to go to visit clinic, hospital for their ailments. So here we are available to give you a proper suggestions, advice and consultation regarding PCOD and its homeopathic management. So friends, I hope you all are getting much valuable information from our YouTube channel Homeo Concept. So in that scenario today, I am going to tell you about PCOD and its homeopathic management. So before going to start, I would like to tell you about PCOD, that what is PCOD. So friends, PCOD is basically polycystic ovarian disorder, which happens due to hormones disorder, which is disbalance of the hormone, especially FSH or LH. FSH is like follicle stimulating hormone and LH is luteinizing hormone. Due to disturbance of these hormones, which is secreted from the anterior pituitary, and for FSH is glycoprotein gonadotropic hormone, which is secreted by the anterior pituitary in response to gonadotropic releasing hormone GnRH, and which is released by the hypothalamus. And the pituitary gland also secretes luteinizing hormone, that is LH, another gonadotropic hormone. And these hormones roles act on the ovary and which facilitate to form a follicle which contained a single egg and which is responsible to get pregnant or to pregnant in the females during reproductive age or childbearing age. So friends, basically FSH और LH का बहुत रोल है हमारे PCOD की कंडीशन में. अगर FSH बहुत कम हो जाता है और LH बहुत इंक्रीज़ हो जाता है तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल सिस्ट फॉर्म हो जाती है ओवरीज में, जिसकी वजह से एक सिंगल एग नहीं बन पाता है और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है PCOD के लिए, क्योंकि एक एग जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए. तो बेसिकली FSH और LH के डिसबैलेंस होने की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, वहाँ पर मल्टीपल सिस्ट ओवरी में बन जाती हैं. तो इस कंडीशन को हम PCOD कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन डज अराइज कि PCOD की एटियोलॉजी क्या है, हाउ इट हैपन्स. सो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर हम बात करें तो PCOD के बहुत ज़्यादा कारण नहीं है क्योंकि आइडियोपैथिक है, बट अगर हम बात करते हैं उसकी एटियोलॉजी की तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इज़ वेरी कॉमन डिसऑर्डर. क्योंकि आज जहाँ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम मॉडर्नाइजेशन की वजह से फीमेल्स में हो रही हैं, प्रॉपर सोने का, उठने का, लेस एक्सरसाइज होने का, स्लीप डिसऑर्डर का, तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर लाइफस्टाइल शेड्यूल नहीं हो पाती है. इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उसमें से PCOD एक है. So lifestyle disorder is very important factor to have PCOD. And second is stress. क्योंकि आज हर पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस है और स्ट्रेस की वजह से हर दूसरा तीसरा पेशेंट PCOD का शिकार होता जा रहा है. थर्ड वन इज़ हेरिडिटी डिसऑर्डर. अगर आपके फोर फादर्स में आपकी मदर को, आपके ग्रैंड मदर को, मौसी को अगर PCOD है तो बहुत ही कॉमन है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी PCOD की पॉसिबिलिटीज़ हो. सो बट फ्रेंड्स, PCOD इज़ बहुत कॉमन डिजीज़ है. अगर ग्लोबली हम बात करें तो 5 to 10% ऑफ द फीमेल इज़ सफरिंग फ्रॉम PCOD. And it's a common endocrine disorder and approx 15 year of age to 45 years of the age of the female is suffering from this ailment.
In otherwise we can say that after menarche or till post-menopausal time, females are suffering from this ailment. And कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि पेशेंट को PCOD है? According to American Association of the Research regarding PCOD, 3 symptoms is very important. First is menstrual irregularities. It may be amenorrhea, it may be oligomenorrhea, dysmenorrhea, and second one is abnormal hair growth around face, around chin or behind thighs. So basically we can say अगर ये 3 symptoms हैं पेशेंट में तो PCOD की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. तो हम और पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आता भी है तो ये 3 कंप्लेंट्स लेके ही ज़्यादा आता है. अगर फेस पे एक्ने हैं, कॉर्स हेयर है, ऑयली स्किन है, स्किन टैग्स है, मूड डिसऑर्डर है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो हम कहते हैं कि PCOD है. क्योंकि जनरल फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं जो PCOD के पेशेंट में ज़्यादातर मिलता है. और अगर हम बात करते हैं वेट गेन के बारे में, क्योंकि क्या है कि PCOD के दौरान इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो ग्लूकोज डिपॉजिट होने लगता है बॉडी के अंदर, तो इससे डायबिटीज़ मेलाइटिस, क्योंकि प्रॉपर ग्लूकोज का एक्सक्रीशन नहीं होता है तो बॉडी में ग्लूकोज डिपॉजिट होने लगता है. उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है और पेशेंट का वेट गेन होने लगता है. क्योंकि एंड्रोजन एक हार्मोन है जो PCOD में इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये फीमेल्स में सिम्टम्स आने लगते हैं. तो उसमें हम कहते हैं कि हाँ PCOD पेशेंट को है. सो ये सारे सिम्टम्स अगर पेशेंट के अंदर मिलते हैं तो हम PCOD डिटेक्ट करते हैं, फाइनली डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को PCOD है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इन्वेस्टिगेशन कराना चाहें तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, पेशेंट का USG कराते हैं तो मल्टीपल पर्ल लाइक नेकलेस लाइक अपीयरेंस उसमें दिखता है, जो कि मल्टीपल सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं ओवरी के अंदर, जो USG से फाइनलाइज होता है कि हाँ पेशेंट को PCOD है. ये सिस्ट मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं जो FSH के लो होने पे और LH के इंक्रीज़ होने पे ये मल्टीपल सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं और सिंगल एग नहीं बन पाता है, सिंगल फॉलिकल नहीं बन पाता है जो कंटेन करता है एक एग which facilitate to form a single egg and which is responsible to get pregnant during reproductive age or childbearing age in the females. तो जब एग नहीं बन पाता है तो इस कंडीशन में, PCOD की कंडीशन में मल्टीपल सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं. इसे हम कहते हैं कि हाँ पेशेंट को PCOD है. सेकेंड है हम बायोमार्कर टेस्ट कराते हैं जिसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं. मेंसेस के सेकेंड डेज से हम FSH, LH, प्रोलैक्टिन, थायराइड प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस और टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन, ये इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसमें इनकी वैल्यू अल्टर्ड होती है. जहाँ FSH बहुत डिक्रीज़ हो जाता है और LH इंक्रीज़ होता है. LH इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर एंड्रोजन भी इंक्रीज़ हो जाता है. जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ीमेल्स में मेल फीचर्स आने लगते हैं जैसे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ. सो दीज कंडीशंस हैपन इन द PCOD. आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द PCOD. अगर हम PCOD को ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अगर हम PCOD को ट्रीट नहीं करते हैं टाइमली तो एज आई टोल्ड अर्लियर दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है जिसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर होता है, इंसोम्निया होता है, डिप्रेशन होता है और OCDs होने लगते हैं जिसमें स्लीप एपनिया भी होता है और इनफर्टिलिटी हो जाती है और इसके साथ साथ यूट्राइन कैंसर हो जाता है, ओवेरियन कैंसर हो जाता है. तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन विच हैपन्स ड्यूरिंग PCOD. आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट हाउ इट्स मैनेज.
So first I would like to tell you that prevention is better than cure. We know that अगर हम चीज़ों को पहले ही प्रिवेंट कर दें तो वो आगे डेवलप नहीं होगी. तो उसके लिए लाइफस्टाइल और डिसऑर्डर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अगर हम अपनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को करेक्ट कर लेते हैं, अगर हम अपने स्ट्रेस को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, तो बेसिकली ये डिजीज़ नहीं होगी. तो फर्स्ट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो हमें फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे इन चीज़ों को करेक्ट करना है. आफ्टर दैट अगर इंसिडेंट हो गया है, अगर ये प्रॉब्लम हो गई है, तो हम बहुत ही इजीली इसको ट्रीट कर सकते हैं. देयर इज़ नो बॉदर अबाउट ऑल दैट. So as a homeopath, I would recommend that always use homeopathy, because homeopathy has no side effect and it root out the disease. Whether it can be any type of disease, it can be root out from the root. So there are so many medicines to treat the PCOD. Like lachesis, staphysagria, pulsatilla, sepia, natramur. So we can give any medicine, but it totally depends on the totality of the symptom. It depends on the constitutional approach, rubrical concept, and finally individualization of the patient. So we can give any medicine. If we find a symptom like patient is very jealous, suspicious, patient has sarcasm, mocking, and patient is very talkative, loquacious, and patient there is aversion to tight clothing around the neck or waist, and there is very much pain, headache during menstruation, before menstruation, on the vertex headache and rushes of blood towards the head, and patient is very talkative, and so we can give lachesis in that condition. Lachesis patient बहुत ही ज़्यादा jealous होता है, और hot perspiration and very hot patient with hot perspiration. एंड लेकेसिस पेशेंट की अगर हम बात करें तो टंग में ब्लैक स्पॉट्स होते हैं और टंग ट्रैम्बलिंग होती है. पेशेंट रात में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, तो इस कंडीशन में हम लेकेसिस देते हैं. और पीरियड्स होने के बाद पेन, जो भी हेडेक है या और भी बहुत सारे पेन्स होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस एग्रेवेट जो भी होती हैं बिफोर मेंसेस, तो वो सारी डिसअपियर्स हो जाती हैं. पेशेंट आफ्टर फ्लो रिलीफ फील करता है. After that, second medicine I would like to tell you, that is Pulsatilla. Pulsatilla is also a very good medicine for the PCOD, where menarche is very delayed and menses is very scanty and delayed, and patient is very shy, mild, yielding disposition, and patient is very we can say typical Indian lady, very yielding personality, किसी भी बातों में बहुत जल्दी आ जाना. And patient is very timid, abrupt, and weeping disposition, बातें करते करते अपने सिम्टम बताते बताते तुरंत रोने लगना. और pain character is very important. If pain comes suddenly, goes gradually. If pain comes gradually, goes suddenly. And patient feels very discomfort in a warm room, and get relief by opening the window and doors. सो पल्सटिला पेशेंट के बारे में अगर नॉर्मली बात करें हम, तो पल्सटिला पेशेंट ही बहुत ज़्यादा शाई होती है और बहुत ही जल्दी किसी की बातों में आ जाती है, और वीपिंग डिस्पोजिशन होता है. कंसोलेशन से आराम मिलता है. अगर आप पेशेंट को बातें करते करते जैसे पेशेंट रोने लगती है, तो अगर आप उसको कंसोलेट करते हो तो शी गेट रिलीफ. सो इन दैट कंडीशन वी कैन थिंक ऑफ अबाउट पल्सटिला. So third one is Natramur. Natramur patient is very sensitive and very loyal also,
as the natriuretic medicine is prepared from the NaCl, as we know the property of the NaCl, नमक की प्रॉपर्टी हमें पता है कि it observe the moisture from the atmosphere. जैसे ही नमक को हम बाहर खुला रखते हैं तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाता है. ऐसे ही नाट्रियम्यूर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और बहुत ही इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी होती है और बहुत ही जल्दी सेंसिटिव होने की वजह से किसी भी बात का बुरा मान जाती है. नाट्रियम्यूर पेशेंट को कंट्राडिक्शन है कंसोलेशन से. अगर आप उससे सांत्वना देते हो तो उसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. मेंटल सिम्टम्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ईजीली. सो मेंटल सिम्टम्स ऑब्ज़र्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और हर मेडिसिन का एक पर्टिकुलर मेंटल सिम्टम होता है जिसकी वजह से पेशेंट ट्रीट होने में आसानी हो जाती है. ऐसे नाट्रियम्यूर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा लॉयल और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और उसको बहुत ही ज़्यादा इंडिफरेंट नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए केयरिंग भी होती है और उसका एक सराउंडेड एरिया है जिससे उसको प्रॉब्लम है वो उससे दूर रहती है और जिससे उसको अच्छा लगता है वो उसके पास में रहती है. और नाट्रियम्यूर पेशेंट के केवल 1 या 2 फ्रेंड्स ही होते हैं जिनसे वो ओपन हार्टेड होती है. सबसे वो इंटरेक्ट नहीं करती है क्योंकि और लोगों से उसको हर्ट हुआ होता है तो वो उस चीज़ से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती है. और इसके बाद हम बात करेंगे स्टेफिसिग्रिया के बारे में. स्टेफिसिग्रिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है. अगर हमें कहीं पर सप्रेशन की हिस्ट्री मिलती है वेदर ऑन फिज़िकल प्लेन और मेंटल प्लेन, जैसे फ़िज़िकल असॉल्ट भी हुआ होता है किसी के साथ तो वो अंदर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती है. पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा एंगर होता है उसके अंदर तो वो उसका सप्रेशन करती है. अगर कहीं पे जो है मेंटल सप्रेशन है जैसे सेक्सुअल डिज़ायर है उसका वो सप्रेशन कर रही है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है और उसमें हम स्टेफिसिग्रिया देते हैं. फीमेल्स में साइकोटिक सिम्टम्स आने लगते हैं और फीमेल्स में सप्रेशन की वजह से बहुत सी तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती है जिस कंडीशन में हम PCOD की कंडीशन में हम स्टेफिसिग्रिया मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. CPI इज़ ऑल्सो अ वेरी good medicine for the females in the PCOD where patient is very chilly and typical housewife जो पूरे टाइम घर के काम में ही अपने आप को बिज़ी रखती है, पूरे टाइम घर का काम करती है और पेशेंट जो है बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, बेरिंग डाउन पेन होता है फ्रॉम बैक टू प्यूबिस एंड क्रॉस सिटिंग पोजीशन में बैठती है पेशेंट कि उसके जो जेनाइटल पार्ट्स हैं वो बाहर ना निकल जाएं और लंप सेंसेशन फील होता है अराउंड द एनस. और सीपिया पेशेंट बहुत ही इंडिफरेंट होती है. अगर बात करें नॉर्मली तो सीपिया पेशेंट अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली, अपने बच्चे के लिए इंडिफरेंट होती है. अपने सराउंडिंग जो लोग भी होते हैं उनके लिए भी बहुत ही इंडिफरेंट होती है. शी डजंट केयर अबाउट एनीवन. और सीपिया लेडी जो है बहुत ही ज़्यादा चिली होती है. ठंड में भी गर्मियों में भी वो स्वेटर पहनना चाहती है. और सीपिया पेशेंट का लुक मैनियन टाइप कंस्टिट्यूशन होता है, रॉबस्ट कंस्टिट्यूशन होता है, हैवी बिल्ट लाइक मैन होता है. और तो इस कंडीशन में हम सीपिया प्रिस्क्राइब करते हैं. अगर हम बात करते हैं एपिस की तो एपिस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है PCOD के लिए जहाँ बर्निंग एंड स्टिंगिंग टाइप पेन होता है विद टेंडरनेस ओवर द ओवेरियन रीजन. एपिस क्योंकि हनी बी से मेडिसिन तैयार की जाती बनाई जाती है तो इसकी वजह से जो स्टिंगिंग टाइप का पेन होता है, एकदम से चुभने वाला टाइप का पेन होता है, उसमें हम एपिस बहुत अच्छी मेडिसिन है. पेशेंट की टंग फायरी रेड होती है विद नो थर्स्ट बट थर्स्ट इन द फीवर. So in that condition we can think of about APIS. After that I would like to tell you about Thuja. Thuja is also a very good medicine for the PCOD, whereas cyst, as we know that cyst is happened when there is a origin of the psychosis. साइकोसिस जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे सिस्ट
फॉर्म होने लगते हैं, वहाँ पे वर्ड्स बनने लगते हैं. एंड थूजा इज़ एंटीसाइकोटिक रेमेडी and it is a very good remedy for the PCOD. So in that condition where there is a psychosis and left-sided complaints, so we have to think of about thuja. Graphitis is also a very good medicine for the PCOD, where patient is very obese and with habitual constipation, और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा चिली होती है, ठंड बहुत लगती है, तो इस कंडीशन में हम ग्रेफाइटिस देते हैं. पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा स्कैंटी और डिलेड होता है. और सो बहुत सारी मेडिसिन्स है, पर हम टोटलिटी ऑफ द सिम्टम एंड इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द केस के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. So these are all about the small intro about the PCOD and its homeopathic management. So I hope you all are getting much valuable information from our site, and we will give you further more videos regarding diseases and its homeopathic management. So I hope you are getting much knowledge from our site, from our YouTube channel HomeoConcept. So friends, if you like our video, please do like, share or subscribe. If you have any query, if you have any question, you can do comments in our chat box. So thank you so much.